Hello everyone, welcome. Today we will do revision of chapter number 5 forms of market. So सबसे पहले we studied in forms of market about market. Market is generally understood as a particular place or locality where goods are buy and sold. Okay, but in economics, market refers to an arrangement through which buyers and sellers comes in close contact with each other directly or indirectly. An exchange of goods and services takes place among them is called market. So we studied about market. Market means a place where buyers and sellers meeting each other, buying and selling of goods, okay, for a particular price. Okay, then there was a definition given by Augustine. Okay, economists understand the term market not any particular marketplace in which things are bought and sold, but the whole of a region in which buyers and sellers are in such a close contact with one another that the prices of the same goods tend to be inequality easily and quickly. That is what market. So दो मार्क्स के लिए डिफाइन पूछा तो market means what and definition of market you have to give. Okay, fine. Then we studied what are the essential of the market. मार्केट के लिए मार्केट एग्जिस्ट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए. दैट नंबर वन वॉज बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट टू बी ब्रॉट एंड सोल्ड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, नॉलेज अबाउट द मार्केट. सेलर्स और बायर्स का क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए, सेलर्स एंड बायर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट होनी चाहिए एंड दोनों में क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो ही हम लोग उसको मार्केट बोल सकते हैं. सो दीज आर असेंशियल. फर्दर वी स्टडीड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. सो क्लासिफिकेशन तीन टाइप पे है. नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन. प्लेस पे हम लोगों ने क्या देखा था, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. लोकल मार्केट मीन्स व्हाट, मार्केट इन विच सेलर्स एंड कस्टमर्स या फिर बायर्स, ओके, buy and sell a product in a region or a area in which it is produced. ओके, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो पर्टिकुलर एरिया में आपस में जो बाइंग एंड सेलिंग होता है उसको लोकल मार्केट बोलते हैं. देन व्हाट इज नेशनल मार्केट. ओके, तो नेशनल मार्केट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री is known as a national market. Now third one is international market. International market is a worldwide market in which buyers and sellers trade in a goods and services across the national borders. So that is about classification of market on the basis of place या फिर area. Then we study on the basis of time. Time के हिसाब से market का category कैसे है. तो number one, very short period, then shorter period, then long period and very long period. Okay, long period means for 5 years, very long period means more than 5 years. Okay, so very short period में supply को कुछ affect नहीं होता है. Okay, short period में supply तो affect नहीं होता है but factors of production का affect होता है. Okay, supply limited होता है short period में. Then long period में हम लोगों ने देखा it is for 5 years. Okay, and here सप्लाई डेफिनेटली क्या होता है, चेंज होते रहता है. एंड वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ टाइम दैट इज सो लॉन्ग, ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल, सो प्रोडक्ट सप्लाई ऑल्सो चेंजेस. ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन वी हैव योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी स्टडीड मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. सो नंबर वन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स व्हाट, हम लोग ने क्या पढ़ा. Perfect competition is a market where buyers and sellers, there are many buyers and many sellers selling homogeneous product, okay, and that product is having same price. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखा था कि एक मार्केट ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, उनका प्राइस भी सेम ही है. ओके, एनी वन कैन एंटर इन दिस मार्केट फ्रीली, एनी कैन एग्जिट फ्रॉम दिस मार्केट. Okay, but remember it is not an ideal market, it is an imaginary concept. Okay, then we studied features of perfect competition market. There are large number of buyers, large number of sellers, homogeneous product, free entry and exit,
सिंगल प्राइस, ओके, यूनिफॉर्म प्राइस होता है ये मार्केट में, प्रोडक्ट सेम होते हैं, एनी वन कैन एंटर, एनी वन कैन एग्जिट फ्रॉम दिस मार्केट, मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स आर देयर, बिकॉज ऑफ दैट नो वन seller or buyer, no one can change the price of the product. Okay, then perfect knowledge about the market, buyers और sellers दोनों को मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए. ओके, देन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ओके, इनकी मोबिलिटी इजीली होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए. देन नेक्स्ट वाज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट यहाँ पे नहीं होता है ऐसा उन्होंने एज्यूम किया है, बिकॉज इट इज़ इमेजिनरी कंसेप्ट. देन नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का ये मार्केट में कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है. फिर हम लोगों ने देखा कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, इसमें प्राइस डिसाइड कैसे की जाती है, क्योंकि कोई एक सिंगल सेलर या फिर बायर प्रोडक्ट का प्राइस इन्फ्लुएंस चेंज नहीं कर सकता. तो ये जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड की जाती है, इट इज़ डिसाइडेड बाय डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस. उनके लिए हम लोगों ने एक टेबल देखा था, देयर वॉज प्राइजेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस हिसाब से उनका डिमांड और सप्लाई देखा था. ओके, जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस को डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को वी गेव अ नेम ई, दैट इज व्हाट, प्राइस. ओके, जैसे कि यहाँ पे ये वाले टेबल में 30 इज द प्राइस, और ये 30 प्राइस को डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल. इससे पहले क्या था, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा था, और इसके बाद क्या है, डिमांड सप्लाई से कम है. तो जहाँ पे प्राइस, सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाती है, दैट इज़ व्हाट इक्विलिब्रियम प्राइस. तो ऐसे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड की जाती है, और वो हम लोगों ने ग्राफ के हिसाब से भी सीखा था. ओके, इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वालिटी और बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. फाइन. देन वी स्टडीड इम्परफेक्ट कंपटीशन. उसमें नंबर 1 था मोनोपोली. मोनोपोली, दिस वर्ड derived from Greek language, that is mono and poly. Mono means one, poly means seller. Okay, then here in this type of market there is only single seller. Okay, no competition. Okay, no substitute. Fine. Barriers to entry, complete control over the market supply. Okay, seller is a price maker. ये मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेट होती है, एक प्राइस डिसाइड नहीं होती है, हर एक सेलर कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस डिसाइड की जाती है. सो दीज वर फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट. देन वी स्टडीड, सी दीज आर द टाइप्स ऑफ मोनोपोली. ओके, ड्यू टू द दिस कोरोना पैंडेमिक, ओके, गवर्नमेंट ने 25% जो पोर्शन रिड्यूस किया है, उसमें ये टाइप्स ऑफ मोनोपोली क्या किया है, रिड्यूस किया है. ओके, बट आपको ये टाइप्स ऑफ मोनोपोली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है वो पता होना ज़रूरी है. सो लेट्स सी. प्राइवेट मोनोपोली मीन्स इट इज़ ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी. एग्जाम्पल टाटा ग्रुप. ओके, तो प्राइवेट इंडिविजुअल जो बंदे का अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अपनी क्या क्रिएट करती है, प्राइवेट मोनोपोली. देन पब्लिक मोनोपोली. ओके, ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन बाय द गवर्नमेंट, that is called as a public monopoly या फिर government monopoly. Example, Indian Railways. Then legal monopoly. Legal monopoly means patent, trademark, copyrights. ये जो है उनकी वजह से अपने को जो मोनोपोली मिलती है उसको बोला जाता है लीगल मोनोपोली. एग्जाम्पल, अमूल का जो पैकेजिंग है, उनका जो ट्रेडमार्क है, और कोई वो चोरी कहीं नहीं कर सकता. देन नेचुरल मोनोपोली. सी, ड्यू टू द प्रॉपर क्लाइमेटिकल कंडीशन, कुछ एरिया में कुछ प्रोडक्ट अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो एरिया में वो चीज़ का क्या रहता है, मोनोपोली. जैसे अल्फांसो मैंगोज अपने यहाँ पे नहीं होते, बट इट इज़ फॉर कोंकण साइड. ओके, देन सिंपल मोनोपोली. सिंपल मोनोपोली मीन्स व्हाट, जहाँ पे सेम प्राइस चार्ज की जाती है, देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मीन्स वेयर प्राइजेस आर चार्ज टू डिफरेंट कंज्यूमर, डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज टू डिफरेंट कंज्यूमर्स. ओके, एग्जाम्पल देना है तो डॉक्टर्स है, लॉयर्स है. ओके, रेलवेज भी यहाँ पे बोला. देखो, हर एक कंज्यूमर को, कस्टमर को अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, तो ऐसे टाइप में क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. नेक्स्ट इज वॉलेंट्री मोनोपोली. वॉलेंट्री मोनोपोली मतलब अपने आप से मोनोपोली क्रिएट की जाती है. ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है, OPEC. ओके, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि 3 कंट्रीज है, वो तीनों कंट्री में ऑयल प्रोड्यूस किए. गल्फ कंट्रीज जो है, दे आर प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड दे आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, बराबर. तो वो कंट्रीज एक साथ आके उन्होंने अपनी एक यूनिटी बनाई है, अपना एक वॉलेंट्री मोनोपोली क्रिएट की है, दैट इज व्हाट, OPEC.
So this is about types of monopoly. Fine. Then next type of market हम लोगों ने पढ़ा था monopolistic market. Monopolistic market is what? It is a combination of what? Of monopoly and perfect competition. मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कुछ मोनोपोली के भी फीचर्स आते हैं और कुछ परफेक्ट कंपटीशन के भी आते हैं. मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है? रियल मार्केट है, ये सही वाला मार्केट है जो अभी चल रहा है. ओके, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट के हम लोगों ने फीचर्स क्या क्या देखे. यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, बट इतने भी लार्ज नहीं है जितने परफेक्ट कंपटीशन में है. उसके वजह से यहाँ पे मोनोपोली नहीं आएगी ये वाले मार्केट में. ओके, so in this market there are large number of seller, large number of buyers. Next is product differentiation. ओके, ये वाले मार्केट में प्रोडक्ट का क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं. वो कलर से, शेप से, साइज से, टेस्ट से, क्वालिटी से, पैकेजिंग से, जैसे भी हो वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं. देन फ्री एंट्री एंड एग्जिट. यहाँ पे क्या बोला है? एनी वन कैन एंटर इन दिस मार्केट, एनी वन कैन एग्जिट. जिनको लगता है कि हम लोग बिजनेस करें वो बिजनेस करेंगे, जिनको लगता है हम लोग को ये लॉस में जा रहा है, ओके, तो दे कैन एग्जिट फ्रॉम दिस मार्केट. नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉस्ट. देखो हर एक का प्रोडक्ट अलग अलग है, तो वो क्या सोचते हैं, अरे अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेचना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पॉपुलराइज करते हैं, तो उसके लिए उनको जो खर्चा आता है उसको बोला जाता है सेलिंग कॉस्ट. नेक्स्ट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट. ओके, हियर एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग क्लोज सब्स्टिट्यूट. ओके, जो भी प्रोडक्ट है वो एक अवेलेबल नहीं है, बट उसके जैसा सिमिलर दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, अल्टरनेट, तो दैट इज व्हाट क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है. नेक्स्ट इज concept of group. In this market, okay, there are concepts of group. okay, जैसे कि सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी वो अपना एक ग्रुप तैयार करती है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी दे आर क्रिएटिंग देयर वन ग्रुप. दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. सो दिस इज अबाउट मोनोपोलिस्टिक मार्केट व्हाट वी आर स्टडी. ओके, देन नेक्स्ट इज ओलिगोपोली मार्केट. ओके, तो ओलिगोपोली मार्केट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ओलिगोपोली मीन्स व्हाट? ओके, ये भी दो वर्ड है, वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं. ओलिगो मतलब फ्यू एंड पोली मतलब क्या? पोली मतलब आपको पता ही है सेलर. ओके, तो ऐसा मार्केट जहाँ पे फ्यू सेलर्स है. ओके, तो ओलिगोपोली के भी हम लोगों ने कुछ फीचर्स देखे थे. फ्यू सेलर, ओलिगोपोली में कुछ सेलर्स होते हैं. देन ओलिगोपोली में एक सेलर दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, उसको इंटरडिपेंडेंस बोला जाता है. फिर हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्टाइजिंग. ओलिगोपोली में अपना प्रोडक्ट हर एक सेलर क्या करता है, एडवर्टाइज करता है. ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा था एंट्री बैरियर्स. ये वाले मार्केट में ओके, दूसरे सेलर्स को अगर आना होगा तो बहुत सारे एंट्री बैरियर्स होते हैं. अनसर्टनटी, ये प्रोडक्ट में, ये मार्केट में प्रॉफिट होगा या नहीं उसके बारे में क्या होता है, अनसर्टनटी होती है, श्योरिटी नहीं होती है. देन नेक्स्ट टाइप फीचर्स हम लोगों ने देखा था लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. यहाँ पे फर्म का साइज स्मॉल है या लार्ज है, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, सेमनेस नहीं होता है. सो दिस इज अबाउट ओलिगोपोली मार्केट. तो हम लोगों ने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट. ओके, ये पूरा लेसन जो है वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट के टाइप्स, उसके फीचर्स, इतना ही क्वेश्चंस एग्जाम में आता है. तो आई होप दिस आर क्लियर विथ यू. ओके, थैंक यू.